Good afternoon, all. I hope I am clearly audible to all. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss about voltmeter. Yesterday we had seen how to convert a moving coil galvanometer into an ammeter. Today we will see how to convert MCG into voltmeter. So can you tell me what is the use of voltmeter? Today I want quick response from you all so that we can discuss quickly. It's lunch time, na? I'm feeling hungry. I hope you are. Okay, Mitesh, you are saying something. Yes, ma'am. It is a device measure potential difference between two points in a circuit. Yes, correct. Good. So, voltmeter is device which we can use to measure potential difference in an electrical circuit between any 2 points in the circuit. Okay. So, this is the image of moving coil galvanometer. Sorry, voltmeter. Voltmeter is always connected in parallel with 2 points across which potential difference is to be measured. सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है देन यू हैव टू कनेक्ट योर वोल्टमीटर पैरेलल with 2 points across that 2 points between which you have to measure potential difference. Now let us see how to convert MCG into voltmeter. So can anybody quickly tell me what we do generally to convert MCG into an ammeter? MCG को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? Yesterday we had discussed about this. If this is the coil of your galvanometer, then to convert that moving coil galvanometer into an ammeter, what necessary arrangement we have done or we need to do? Ma'am, वो sun resistance को parallel connect. Yes, we have connected one low value resistor in parallel with the coil of MCG. Okay. So now in case of voltmeter, to convert this MCG into an voltmeter, we need to connect some high resistance in series with the coil of galvanometer. Okay. So let us see how. So suppose this is your galvanometer coil. Okay. Then by connecting some high resistor in series with the coil of galvanometer, you can convert your galvanometer into voltmeter. So remember this, MCG can be converted into voltmeter by connecting some high resistance, okay, in series with it. This high resistance is generally made up of manganese. Okay. What is manganese? Manganese is an alloy of copper, manganese and nickel. Okay. So this is how a permanent magnet or moving coil instrument in series with high resistor is called voltmeter. Now again, why we need to convert MCG into voltmeter is MCG, moving coil galvanometer, is very delicate. Okay? And yesterday also we had discussed it can give full scale deflection for current of the order of 10 milliampere. 10 milliampere इतने current के लिए भी वो full scale deflection दिखाता है. Or even when small potential difference is applied across its terminal, it shows full scale deflection. Okay. And hence to measure large potential difference, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई. अगर हम लोग को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, large potential difference, if we want to measure, then the effective resistance of the instrument also should be high. Okay. Why it should be high? Because
from Ohm's law, you can simply make out what is the relationship between this voltage and resistance. क्या relation है potential difference और resistance में? V is equal to IR. Direct So V proportionality. direct proportionality. अगर V means voltmeter का काम ही क्या है? To measure potential difference. So to measure large potential difference, ये value अगर large potential difference measure करना है, then the resistance of the effective resistance of the instrument which you are going to use to measure potential difference should be high. जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम मेजर करने के लिए यूज करने वाले हो, इसका रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए? हाई चाहिए. And to make effective resistance large, we simply resistance with the coil of galvanometer. Okay. One more thing here is, see, when large potential difference is applied across the terminals of MCG, large current will pass through the coil of MCG. And what happens because of this is, it may result in burning of the coil due to excessive heat produced. Whenever we apply large potential difference, large amount of current flows through the coil of MCG. ज्यादा current pass होते हैं, और ज्यादा current अगर coil से pass हुआ, then what will happen? It can lead in the burning of coil. We had discussed heating effect of electric current. If we pass an excessive current through any conductor, then it may produce heat. Okay? वो हिट हो जाता है. Okay? So गैल्वेनोमीटर कॉइल को इस डैमेज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ओके, वी कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल. सो आइडियली अगर हम लोग को वोल्ट ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाई. इट शुड बी एज हाई एज लार्ज एज पॉसिबल. So an ideal voltmeter has infinite resistance. सबसे ज्यादा वैल्यू infinite resistance it can have. Ideal voltmeter has. But practically ये possible नहीं होता. Practically ज्यादा जितना maximum हो सकता है उतना high resistance. Okay, you can we can connect to measure large potential difference. Now let us see the expression for this high resistance, which we need to connect in series with the coil of MCG in order to convert it into a voltmeter. किसी भी galvanometer के coil को voltmeter में convert करने के लिए कितने वैल्यू का रेजिस्टर हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है वो हम देखते हैं अभी. सो आई एम शेयरिंग ऑन द नेक्स्ट इमेज फॉर दिस. So this is how we can convert MCG into voltmeter. This is the galvanometer coil. Some external resistor is connected here in series with the galvanometer coil. Let us assume that IG here is the current flowing through the galvanometer, okay, for which galvanometer gives full scale deflection. Okay. G is the resistance of galvanometer. Okay. This resistor which we have connected externally in series with the coil of galvanometer, it is generally denoted by RS. Okay. So RS is the resistance of galvanometer, okay, resistance of high value which we have connected in series with the galvanometer coil. Okay. Now let us assume that V is the potential difference which has to be measured here. Okay. V a potential difference है जो हमें क्या करना है? Measure करना है. Now this potential difference which we have to measure, this splits into two here. Okay. Vg is the potential difference across galvanometer coil, and Vs is the potential difference across this series resistor. Let me denote it by VR. VR is the potential difference across this series resistor. Okay. According to Ohm's law, what we will get here is V is equal to Vg plus VR. ये पूरा कितना potential difference measure करने हैं? V. Okay. So this potential difference is how we can calculate this potential difference. It is the sum of the potential difference across this galvanometer coil and
potential difference across this resistor, series resistor. So we can simply calculate V by adding this two, VG plus VR. Now how we can go for VG and VS? VG कैसे calculate करेंगे? How we can express this VG in terms of current and resistor? IG capital G. Yes. Okay. So it's simply V is current into resistor. So VG is IG into capital G. गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है? IG. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G. Okay. Similarly, VR potential difference across this series resistor we can calculate by IGRS. IGRS. Remember, since these two resistors are in series with each other, okay, combination same current IG is flowing through them. Okay, दोनों में से same current flow हो रहा है because they are in series. So here IG we can take common, so it's IG into G plus RS. So what expression here we are getting? It's G plus RS is equal to V upon IG. So we can write expression for this series resistor is as RS is equal to V upon IG minus G. Remember, this IG is only in the denominator of V, not in G. Okay? So this equation gives us the value of resistor of high resistor which should be connected in series with the coil of MCG in order to convert it into voltmeter. गैल्वेनोमीटर के कॉइल को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतने वैल्यू का क्या करना है? सीरीज रेजिस्टर हाई वैल्यू रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करना है. So note down this expression RS equal to V upon IG minus G, where we represent a potential difference to be measured. IG is the current through galvanometer and G is the galvanometer resistance. Now, see what is the use of this series resistor, high value resistor, which we connect here in series. इसकी वजह से क्या होता है? ये रेजिस्टर यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से जैसे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया, V इज इक्वल टू आई आर है. एज पर ओहम्स लॉ V का एक्सप्रेशन आई आर है. टू मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस दिस R शुड बी हाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी हाई. सो ये RS जब भी हम ये सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं हाई वैल्यू रेजिस्टर, तो वो क्या करते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. So remember the function of this series resistor, high value series resistor is it increases the effective resistance of galvanometer. वो ये रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से ओवरऑल ये जो इंस्ट्रूमेंट का वो बढ़ता, जैसे ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हम ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. मीन्स it simply increases the range of voltmeter. Okay, we can measure maximum large amount of potential difference too if this effective resistance is high. Okay. So this is the second function of this high value resistor. That first function is it increases the effective resistance. दूसरा है वो voltmeter की range बढ़ाता है. Okay. And one more thing is happened here because of this series resistor is it protects the galvanometer from damage due to large current. So these are the functions of high value resistor connected in series with the coil of galvanometer. Now let us discuss some special case. Okay. See what expression we have for this series resistor is V upon IG minus G. Now let us assume that if this N is V times suppose if the potential difference which has to be measured is N times the potential difference across galvanometer.
then just substitute this condition in this expression and see what you will get. अगर सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है वो n टाइम्स Vg है. Vg means what potential difference across galvanometer है. Then what you will get? How much will be the value of Rs in that case? So simply we can substitute this V as nVg here and let us see what we will get. So it's nV I am replacing by n times Vg upon Ig minus G. ये Vg upon Ig represent what? Vg voltage है, Ig means current है flowing through galvanometer. So V upon I represent what? R. R. ये ओम्स लॉ अगर देखेंगे V इक्वल टू आई आर, सो V अपॉन आई वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या रहता है रेजिस्टेंस. सो दिस इज Vg इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, Ig इज द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. सो Vg अपॉन Ig इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. एंड हाउ वी डिनोट गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं हम? G से. करेक्ट. सो simply what we will get here, Rs is N, this Vg upon Ig is nothing but capital G, galvanometer resistance minus G. So we can take G common here and in bracket we will left with N minus 1. So here Rs is G into N minus 1. So whenever the potential difference to be measured, it's N times the potential difference across galvanometer. That time simply you can calculate the value of series resistor which need to be connected in series with the galvanometer coil by using this expression G into N minus 1. So note down this expression too. Then we will go for numericals based on this. Okay, done with this? Okay, so let's move ahead now. So first we will see some simple problems. Read this question number 255. First read on your own and tell me what are the given things here in this problem. Okay, so now what are given? Kaveri, can you tell me what data we are getting from this? A moving coil galvanometer resistance 40 ohm. So फटाफट बताना है. Simply you have to read and tell the given things. ये क्वेश्चन में ये पहले समझ ये समझ तभी find out करना है. We can think about that. तो पहले क्वेश्चन रीड करके बाद able to note down what are given things. Problem. Moving coil galvanometer of resistance.
कौन सी दी है ये, क्या रिप्रेजेंट फोटो? ममता, I want to respond from you, then I will move. D I answer. मी एक मिनिट, just a minute. मनीषा, ओके, तो गर्ल्स से भी आंसर फ्रॉम गर्ल्स टू। क्वेश्चन की आंसर है, देखते हैं पहले कौन से वैल्यू है, बट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, ये 40 ओम कौन सी वैल्यू? Capital G 40 ohm. यस, आगे कह दिया है करंट 0.5 मिली एम्पीयर। IG equal to 0.25 milliampere. यस, And B बाकी equal to लोगों से 10 भी volt. मुझे आंसर चाहिए। या वोल्टमीटर रेंज मीन्स हाउ मच करंट, व्हाट इज इट्स वोल्टेज कैपेसिटी, कितना वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। सो 10 वोल्ट वोल्टमीटर रेंज है। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन सीरीज इज, अगर ये गैल्वेनोमीटर कॉइल को मुझे 10 वोल्ट रेंज वाले वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, देन कौन सा रेजिस्टर, किस वैल्यू का रेजिस्टर मुझे सीरीज में कनेक्ट करना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। So, what answer, Mitesh, you are getting? D. D. And someone, I think so, किसने मुझे और दिया, ममता और या फिर मनीषा, दोनों में से एक ने कितने वैल्यू बोली है? ए, देखते हैं। तो सिंपली V अपॉन IG माइनस G, V कितना है मेरा 10 है, IG इज माई 0.25, ये मिली एम्पियर है ना, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एम्पियर। हाउ यू विल कन्वर्ट मिली एम्पियर टू एम्पियर? Into Milli. 10 raised to minus 3. Yes, milli means 10 raised to minus 3. माइनस कितने हैं, जी की वैल्यू कितनी है 40। तो ये अभी सॉल्व करना पड़ेगा। दिस 10 raised to minus 3 आई कैन टेक अप, तो -3 क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। एक पहले से ही 10 raised to 1 है यहाँ पे प्रेजेंट, ये -3 ऊपर आ जाएंगे तो +3, सो ऊपर हो गए 10 raised to 4। So now I'm just clearing this part. तो ये क्या हो गया मेरा 10 raised to +4 के अपॉन 0.25 माइनस 40। 10 raised to 4 कितने हुए, ये 0.25 है ना, सो 0.25 यू कैन राइट इट एज, ऐसे भी कर सकते हो उसको, या फिर यू कैन टेक इट एज 2.25 इंटू 10 raised to -2। ये 10 raised to 4 मतलब 10,000, 10,000 को मैंने 25 से डिवाइड किया, तो कितने मिले 400। ये 10 raised to -2 फिर से ऊपर लेके गए, 10 raised to +2 माइनस 40, ओके, सो 400 इंटू 10 raised to 2, ये हो गए 40,000 माइनस 40, सो 40,000 माइनस 40 39,960। सो ये कन्वर्जन जरूरी है करना। इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग मिली एम्पियर इंटू एम्पियर, देन योर आंसर, you will get wrong answer.
Now the solution is clear to you, Mamta and Manisha. Yes, ma'am. Okay. So let us move ahead now. Yeah. So next question only you have to go, but I'm just clearing this and sharing the image again. Okay. First I'm giving you 3-4 minutes to go to sum and come up with an answer. Then we will discuss. Okay. So take 3 to 4 minutes to solve this. Question number 256. If you are not getting anything, you can ask. D I answer. डी आंसर आइए देखते हैं. Uh, let others solve and then we will discuss. Okay. Okay, Mitesh, will you please explain how you have solved it instead of me? Uh, you have already found solutions, so please share what steps you have followed to find out this answer. मैम ऐसा ही रफ मैं कर दिया, वो मतलब पहले वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और उसके बाद दो इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है. Yes, correct. ये इक्वेशन क्या है हमारा? RS is equal to, what about others? Have you got Saloni, Mamta and ये Manisha? What Mitesh have said is correct, absolutely correct. So equation है V upon Ig minus G. Okay. So पहले क्या दिया? Range of galvanometer is V when 50 ohm resistance is connected in series. Its range gets doubled when 500 ohm resistance is connected in series. तो as per this first statement, फर्स्ट केस से हमें क्या पता चलता है? पहले केस में सीरीज रेजिस्टेंस कितना था? 50. ओके. रेंज थी V, वोल्ट मीटर रेंज. दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट Ig एंड G. सेकंड केस में क्या हो गई? रेंज गेट्स डबल्ड. ओके, मतलब ये V क्या हो गया? 2 times V. गैल्वेनोमीटर की रेंज डबल हो गई. बट दैट टाइम the resistance connected in series has value 500 ohm. Okay. तो ये दो इक्वेशन मिले. 50 इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G, 500 इक्वल टू 2V अपॉन Ig माइनस G. If you subtract 1 from 2, then what you will get is, ये Gg तो कैंसिल हो जाएगा. Okay. 2V अपॉन Ig माइनस V अपॉन Ig बचेगा V अपॉन Ig. 500 माइनस 50 बचेगा 450. ओके. तो ये V अपॉन IG की वैल्यू मिल गई तुम लोग को. V अपॉन IG का ये रेशियो की वैल्यू क्या है? 450. नाउ यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू बैक इन दिस इक्वेशन. ये पहले इक्वेशन में V अपॉन IG की वैल्यू डाल सकते हो 450. तो क्या ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन 500 इक्वल टू, सॉरी 50 इक्वल टू 450 माइनस G. So G will be 450 minus 50, that is 400. Okay. So ये भी एकदम सिंपल है. Okay. You have to simply substitute the two cases. You have to express these two cases in terms of this expression. Okay. और बाद में mathematical calculation है.
Is this clear to you? I'm asking to all. Okay. चलो तो आगे बढ़ते, नोट डाउन कर रहे हो ना, एक्सप्रे और कर रहे हो ना खुद से सॉल्व? Yes, ma'am. कैलकुलेशन में या किसी भी इसमें प्रॉब्लम है, देन यू जस्ट फील फ्री टू आस्क. Again, I'm coming back to now little bit higher order question or where you required some critical thinking. Okay, sensitivity के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है already and we had solved few problems also based on it. Now read this statement, two statements, and just let me know which will be the correct option here in this case. First, I want to know what you think, then we will discuss. I hope the question is readable. And screen half audio. Okay, let me share again. Now, दिख रहा है पूरे ना? Yes, ma'am. Okay, क्या लगता है तुम लोग को? What will be the correct option here? Both the statements are true or false, or which one is false or which one is correct? True. Okay, let's see first statement. The sensitivity of MCG is increased by using a soft iron cylinder as a core inside the coil. वो ट्रू है. True. ट्रू है. ओके, क्यों ट्रू है? ट्रू है तो क्यों? Why it is correct? सेंसिटिविटी और सॉफ्ट आयरन कोर का क्या रिलेशन है? हाउ विल यू कम टू नो दैट दिस गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू? जो भी लगता है यू कैन टेल. क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है. यस, करंट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था K अपॉन NBA इंटू थीटा. Current flowing through moving coil galvanometer. So from this K theta is NBA upon K times psi. Okay. So या तो करंट के लिए कोई भी बात नहीं है, करंट के बारे में नहीं बोले. So from this it is very clear that this theta depends on B. Okay. सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन क्या है? सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ना. सेंसिटिविटी के डेफिनेशन है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. सेंसिटिविटी कभी बढ़ती है जब थीटा बड़ा रहता है. okay? If the angle of deflection is large, then sensitivity will be large. Okay? So
एंड थीटा किस पे डिपेंड है? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। रिलेशन क्या है देखो, सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन थीटा एंड थीटा डिपेंड्स ऑन बी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है एंड वी कैन इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड by using soft iron core. When we use soft iron core, it increases the magnetic field. Magnetic field बढ़ेगी तो थीटा बढ़ेगा एंड थीटा बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी for the same value of current. Okay? Making so it will make galvanometer more sensitive. So पहला statement तो correct है. The sensitivity of MCG is increased by using a soft iron cylinder. Okay? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि soft iron core क्या करते हैं, मैक की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, एंड क्या बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? सॉफ्ट आयरन हैज हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड कैन नॉट इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड। ये मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या होता है, और इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। whenever we pass electric current through any conductor, it produces a magnetic field around it. Okay? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे वर्क करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे करंट पास करने के बाद अगर तुरंत मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, and as soon as we stop the current passing through any given conductor and if that conductor gets immediately demagnetized, वो मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो जाती है, तो उसको इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होना कहते हैं। करंट जब तक कॉइल से पास करे मैग्नेटाइज्ड है, जैसे ही करंट सप्लाई कट करते हो, ऐसे यू स्टॉप पासिंग करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो रही है, वो डीमैग्नेटाइज्ड होता है। मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होता है मतलब क्या, मैग्नेटिज्म में तुम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, एटॉमिक डोमेन्स। वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। जैसे ही करंट स्टॉप करते हैं तो जो मैग्नेटिक, सपोज लेट मी शो यू हियर, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, okay? तो जैसे ही करंट पास करते हैं, एटम्स के जो एटॉमिक डाइपोल्स है वो पहले तो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। okay? When as soon as we apply some magnetic field, okay, ये क्या हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन करते, अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको मैग्नेटाइज्ड होना कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक करंट स्टॉप करते हैं, और अगर ये जो डाइपोल्स है, इफ अगेन दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब क्या हो जाता है, वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं मटेरियल। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं। जब तक हम करंट पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इमीडिएटली। जैसे ही करंट स्टॉप करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है तुरंत। तो द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया, कैन नॉट बोला है। सॉफ्ट आयरन हैज हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? इट मेजर्स द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल कैसे बिहेव करेगा वो बताती है। तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई है, मतलब बिहेवियर कैसे है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो डोमेन्स रहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं खुद को। okay? और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, अगेन दे गेट रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। तो ये क्विक होता है जो प्रोसेस है मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइजेशन का, इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज इट्स परमेबिलिटी इज हाई and therefore the second statement is false. Okay, so here the first statement is true and second statement is false, and therefore which is the correct option here? ऑप्शन सी। Yes. So याद रखना, ये सॉफ्ट आयरन है, since it has high magnetic permeability, it can easily magnetized and demagnetized. So next question, let's move towards next question now.
Okay, first read this question on your own, then we will discuss. Okay, tell me how will you will solve this. कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्या दिया है पहले बताओ क्वेश्चन में. पहले स्टेटमेंट में बताओ क्या दिए है. If a shunt of 1/10 of the coil resistance is applied to moving coil galvanometer, ये कैसे लिखोगे, shunt of 1/10 of coil resistance. फटाफट बताओ. देखो ये स्टेटमेंट जब भी पढ़ते हैं हम तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना आना चाहिए ना उसको. क्या बोले, शंट. शंट रेजिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हैं 1/10 ऑफ द कॉइल रेजिस्टेंस. कॉइल मतलब गैल्वेनोमीटर की कॉइल. तो कॉइल रेजिस्टेंस के कितने हैं, 1/10. सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे ये पता चलता है, एस इक्वल टू 1/10 ऑफ जी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. Yes, ma'am. तो अभी इसके आगे कैसे करोगे, हमें क्या करना है, देखो कैसे जाना है ये कैसे पता चलते है. सेंसिटिविटी पूछिए. ठीक है? पहले स्टेटमेंट में तो ये दिए, इतना पता चला. और आगे क्या बोले, देन इट सेंसिटिविटी बिकम्स. तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, तो सेंसिटिविटी पहले तो किस पे डिपेंड है, सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ये, सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. सो पहले सपोज जब गैल्वेनोमीटर कॉइल ली है उसको ये शंट नहीं कनेक्ट किया, अप्लाई नहीं किए, तब जो सेंसिटिविटी रहेगी वो मैं एस जी से डिनोट करती हूँ, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. करंट कितना, गैल्वेनोमीटर से जितना करंट फ्लो होगा उतना. सो पहले केस में गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, पहले केस में मतलब जब उसको शंट अप्लाई नहीं किए तब उसकी सेंसिटिविटी कितनी रहेगी, थीटा अपॉन आई जी. आफ्टर अप्लाइंग शंट, शंट अप्लाई करने के बाद अभी मैं इसको एस डैश से डिनोट करती हूँ. एंड लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दिस. एक मिनट. शंट अप्लाई करने के बाद सेंसिटिविटी कितनी हुई है उसकी, वो कितना आएगा, थीटा अपॉन, सपोज शंट अप्लाई करने के बाद करंट है आई. तो पूछा क्या है, देखो सेंसिटिविटी, शंट अप्लाई करने के बाद सेंसिटिविटी क्या होगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी. तो एस जी और एस में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है? तो हम लोगों ने दोनों एक्सप्रेशन लिखे, पहले गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कितनी थी, शंट अप्लाई करने के बाद सेंसिटिविटी क्या हो गई, थीटा अपॉन आई. आई क्या है, शंट अप्लाई करने के बाद जो भी करंट होगा वो. तो अभी हमें क्या करना है, थीटा तो दोनों केस में सेम है, करंट में ये रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं आई और आई जी में. तो आई और आई जी का एक्सप्रेशन क्या है, इज देयर एनी रिलेशन विच कनेक्ट आई एंड आई जी.
while discussing this ammeter, we have seen the expression for current flowing through galvanometer in terms of total current I. शंट करंट कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर कॉइल को शंट करंट शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद उसका टोटल करंट क्या हुआ है आई. टोटल करंट कितने फ्लो हो रहे हैं आई. सो ये हमें आई और आई जी में कुछ रिलेशन चाहिए. देन ओनली वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी क्या हुई है, बड़ी है कम हुई है. कुछ याद आ रहा है एक्सप्रेशन? मैंने बोला भी था नोट डाउन करने के लिए. करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर आई जी, ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं. गैल्वेनोमीटर यहाँ सब्सक्रिप्ट में जी है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिस्कस किया था. आईजे का एक्सप्रेशन बोलो. करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर IG इक्वल टू IS बाई G प्लस S. आईजी इक्वल टू IS बाई G प्लस S. IS प्लस G प्लस S. या और इन टर्म्स ऑफ दिस टू रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड ये कैसे लिख सकते हैं. कल मैंने एक एक्सप्लेन करते वक्त कहा था वो एक्सप्रेशन सिंपली याद रखने के लिए यू कैन थिंक अबाउट दिस. ये सब्सक्रिप्ट में जी है, जब भी सब्सक्रिप्ट में जी है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तुम लोग को एस लिखना है. नीचे दो रेजिस्टर्स की सम आएगी एस प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट आई. सो आई जी का ये एक्सप्रेशन है, ये हमें आई जी और आई में क्या रिलेशन है ये दे सकता है. ये आई में सिंपली उस तरफ लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को मैं रीराइट कर सकती हूँ. सॉरी, दिस एक्सप्रेशन आई कैन रीराइट एज आई जी अपॉन आई इक्वल टू आई जी अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी. तो ये एक्सप्रेशन नोट डाउन करो पहले. आई जी अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी. देन व्हाट यू कैन डू, एस की वैल्यू है जी के टर्म में, एस इज जी बाई 10 तो एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे. एस इज जी बाई 10. जहाँ पे एस है यू कैन रिप्लेस इट, राइट इट इन टर्म्स ऑफ जी. तो ये क्या आएगा, जी बाई 10 11 टाइम्स जी बाई 10. सो इट्स सिंपली 1 बाई 11. आई जी अपॉन आई का रिलेशन क्या मिल रहा है मुझे, 1 बाई 11. इतना समझ में आ रहा है पहले कैसे किया. यस मैम. पहले तो हम लोगों ने सेंसिटिविटी सिर्फ गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कितनी होगी वो लिखे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. करंट मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट. दूसरे बार शंट कनेक्ट करने के बाद सेंसिटिविटी क्या हो गई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. अभी करंट क्या है, टोटल करंट. क्योंकि करंट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का करंट भी होगा, शंट रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होगा. तो यहाँ पे करंट क्या आएगा, टोटल करंट थीटा अपॉन आई. फिर हम लोगों को अभी आई जी और आई को कनेक्ट करना है तो आई जी अपॉन आई का रिलेशन दिखा हम लोगों ने. आई जी अपॉन आई के है एस अपॉन एस प्लस जी. देन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ एस इन टर्म्स ऑफ जी एंड वी गॉट हियर आई जी अपॉन आई एस 1 अपॉन 11. तो अभी मैं ये क्लियर कर दूं पोर्शन पूरा. यस मैम. यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्या क्या मिला है. पहले गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हमें मिली थी थीटा अपॉन आई जी. शंट कनेक्ट करने के बाद सेंसिटिविटी एस डैश से डिनोट की थी थीटा अपॉन आई. और आई जी अपॉन आई मिला है 1 अपॉन 11. नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट दिस रेशियो. लेना है कितने टाइम सेंसिटिविटी बढ़ी है ये निकालना है. तो कैसे निकाल सकती हो, आई कैन राइट फाइनल सेंसिटिविटी अपॉन इनिशियल सेंसिटिविटी. फाइनल सेंसिटिविटी ये है शंट कनेक्ट करने के बाद, इनिशियल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी. ये रेशियो क्या आएगा, थीटा अपॉन आई अपॉन थीटा अपॉन आई जी.
तो दिस इज नथिंग बट IG अपॉन I। IG अपॉन I की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट की है। IG अपॉन I इज 1/11। सो फाइनल सेंसिटिविटी क्या है? S डैश इज 1/11 टाइम्स Hg। पहले जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है उससे 1/11 है। Are you getting this? यस मैम। Okay, so let's go back to question and see कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है तुम लोग को कि कैसे करना है फ्रॉम गिवन डेटा। तो सेंसिटिविटी का करेक्ट ऑप्शन क्या है? D. 1/11 टाइम्स मिला था हम लोग को, डी। यस। चलो एक नेक्स्ट देखते हैं क्विकली। ये 327 वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो खुद से, पहले अच्छे से पढ़ो और क्या क्या पूछे और क्या करना है, थिंक अबाउट इट। These last two questions, these are the last two questions, okay? So I want answers from you, okay? इसके answers मुझे, answers मतलब solution, the steps, how you are going to solve this, okay? ये मुझे आप लोगों से चाहिए। Now you will tell me how we can find out the solution of this। कैसे कर सकते, क्या क्या दिया हुआ है, and what you have to find out and how will you go for that। देखो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं टुगेदर। वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। तो एक वायर थी जिसकी लेंथ दी है, वो स्क्वायर शेप में बेंट की है। व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 8 टेस्ला। तो ये वायर क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड को, ये लूप जो स्क्वायर लूप बने, ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा है। एंड सिंस दिस करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 2 न्यूटन। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो भी दी है 8 टेस्ला। हाउ कैन द करंट इन द कॉइल बी मेजर्ड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम। ये क्या दिया है बोलो स्टेटमेंट में, लास्ट में। लास्ट स्टेटमेंट में ये दो कौन सी वैल्यू दी है वो बताओ। कैपिटल जी और आई का। यस, कैपिटल जी दिए है 100 ओहम। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कल ही मैंने बोला था ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये स्टेट में आया स्टेटमेंट, तो वो समझने की गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू है। तो ये दिया है, कैसे करोगे। हाउ कैन द करंट इन द कॉइल बी मेजर्ड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है पहले उसको। Whatever the things are given that is about galvanometer, just tell me how we convert, what we need to do to convert galvanometer into ammeter। करंट मेजर करना है ना, तो करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। और वो कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट, सॉरी एमीटर इनटू एन एमीटर। रेजिस्टेंस कैसे शंट कनेक्ट करते रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हैं। यस, या फिर जो वो
पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए रहते हैं उसको ही हम शंट कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। सो वी कनेक्ट। तो देखो ऑप्शंस देखो, अभी यहाँ पे सारे ऑप्शंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये पहला ऑप्शन तो सीरीज रेजिस्टेंस है, तो हम लोग तो सीरीज में कनेक्ट नहीं करते पहली बात तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। अभी रेंज तो हमें पता ही नहीं कितना मेजर करंट वो कैरी कर रहे हैं लूप, तो पहले हमें क्या करना फाइंड पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट करंट, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम रेंज के बारे में बोल सकते हैं ना कि उतना मेजर कर पाएगा कि नहीं। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें तो गैल्वेनोमीटर का करंट दिया है। We don't know what is the capacity of this galvanometer. हम लोगों ने उसको रेजिस्टेंस कनेक्ट किया भी तो भी वो कितना करंट मेजर कर पाएगा वो नहीं पता, तो ये करंट कैसे निकाल सकते हैं। अभी एक बात इससे क्लियर होती है कि हमें ये गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज करना है, तो हमको उसको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करना होगा, शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है। अभी कितने वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो हमारे शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, क्या एस फॉर्मूला इक्वल है टू आई बताओ। जी, एस इक्वल टू आई जी हाँ, बाय आई माइनस आई जी माइनस कैपिटल जी। इंटू कैपिटल जी। तो अभी हमारे पास आई जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, हमें आई चाहिए सिर्फ ना। once we got the value of I, then our problem is solved. Okay? तो I कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पहला वाला डेटा देखो फोर्स ऑन करंट। क्या दिए। यस, by using the expression of force acting on current carrying conductor in a magnetic field. Whenever any current carrying conductor placed in magnetic field, it experiences a force and that force is given. But what is the expression for that force? Force के लिए एक्सप्रेशन क्या है वो, force एफ acting on any, हाँ कैसे वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे सम देखे इस पे हम लोगों ने। एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। Yes, ILB sin theta. Okay. So here, see, we have value of force. Na? We have value of magnetic field. We have value of length. Okay. Theta. What is theta? Here, 90 डिग्री। 90 degree, because they have mentioned that when placed perpendicular in magnetic field. So theta is 90. Okay. So this will be sin 90 is 1. So it's ILB. We are interested in value of I, finding out the value of I. So I will be F upon LB. So first substitute value of F LB here and find out I. एक बार I मिल गया, then you can substitute this value of I here in the expression of shunt resistance and find out the value of shunt. So take a minute and do this. पता चल रहा है सबको क्या करना है, पहले तो तुम लोग को I फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। एक बार करंट मिल के जाएगा तो देन यू कैन यूज दैट वैल्यू एंड फाइंड आउट शंट। I hope all of you are solving. Okay. क्या आंसर है ये बताओ, आई की वैल्यू कितनी मिली पहली बार तो, आई की वैल्यू क्या मिली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस एल बी। Manisha, you have measured the value of current.
how long you are using this app? Now I don't think so you require much time to unmute yourself and answer. फटाफट आंसर देना है. कितनी मिली मितेश वैल्यू आई की? 10/8. एफ है 2, एल है 20 सेंटीमीटर ना. 20 सेंटीमीटर. ओके, एल क्या 20 लिया था क्या? नहीं मैम, 20 into 10⁻². ओके, बट सी वन थिंग हियर इज, वो लूप वायर का लूप स्क्वायर शेप में बेंड किया है ना, तो वो स्क्वायर की साइड पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम लोग को मेजर करना पड़ेगा यहाँ पे. तो अगर 20 सेंटीमीटर लेंथ के वायर में स्क्वायर शेप में बेंड करी हूँ तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी? नाउ द शेप ऑफ द लूप इज स्क्वायर ना, एंड द Yes, ma'am. स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी? 20 सेंटीमीटर की वायर मैंने स्क्वायर शेप में बेंड की, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड? 5 cm आएगी. यस, 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 5 इंटू 10⁻². सेंटीमीटर में है तो मीटर में लिखना पड़ेगा, इंटू 8. So I'm simply getting here 5 एम्पियर. ये 5 4 जा 20 आ गया. 10⁻² ऊपर जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएंगे, मीन्स 100 डिवाइड बाय 20, सो इट्स 5 एम्पियर. अभी ये वैल्यू करंट की लेनी है और यहाँ पे शंट फाइंड आउट करना है, शंट रेजिस्टेंस. देखो अभी फटाफट सॉल्व करो और कितना है बताओ. लंच हुआ कि बाकी है सबका? क्या ममता भूख लगी क्या? आंसर नहीं दे रही है ममता, मनीषा. Anyone got here answer of this S का मिला आंसर कितने है? शंट रेजिस्टेंस करो फटाफट कैलकुलेशन. आईजीबी 50 मिली एम्पियर है, सो वो भी क्या करना पड़ेगा? एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5 10⁻³ इंटू जी. जी कितने? 100 है. कितना आया इस सबका आंसर? हरी अप स्टूडेंट्स, चलो फटाफट करो, क्या है आंसर देखो. क्या मितेश आया क्या आंसर? नहीं मैम, कर रहा हूँ. ओके. मनीषा,
Saloni, are you getting? चलो मैं भी करके देखती हूँ यहाँ पे कितना आंसर है। 15 इंटू 10⁻³ 100 मतलब 10⁻², -3 + 2 -1। सो ऊपर मुझे मिल रहा है 15 इंटू 10⁻⁻1। 5। 15 इंटू 10⁻³ को पहले मुझे सब्ट्रैक्ट करना है अगर, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट्स 0.015। ये भी अगर कन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा है, देन यू जस्ट फील फ्री टू आस्क। ओके, सॉरी यहाँ पे अभी ये पूरा करते बैठने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन एकदम। ये 15 इंटू 10⁻⁻1 है। ये 4.9 आई कैन टेक अप्रोक्सीमेटली एज 5। 15 डिवाइड बाय 5, 15 डिवाइड बाय 5 कितने आए? 3। 3 इंटू 10⁻⁻1, 3 इंटू 10⁻⁻1 क्या कहेगा? 0.3। सो शंट की वैल्यू क्या मुझे मिल रही है? 0.3। अभी ऑप्शंस देखो, मितेश आया क्या आंसर? चलो आई एम वेटिंग फॉर योर अभी रिस्पॉन्स। तक। हाँ, यस मैम। 0.3 ओहम शंट की वैल्यू मिली। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें इतना। अभी ऑप्शन एक बार मैं ये क्लियर करती हूँ और फिर से शेयर करती हूँ। ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन में देखो क्या आने वाला है। 0.3 यस मैम, आ है, गया 0.3 आया। लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन फिर है? ए क्या है? बाय कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 0.3। बी है बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.3। सी है बाय इंक्रीजिंग रेंज ऑफ बी आएगा। गैल्वेनिक। बी आएगा। बी, क्योंकि हमें करंट मेजर करने हैं तो एमीटर में कन्वर्ट करने हैं, और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें शंट रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की जरूरत रहती है। सो 0.3 ओहम दोनों में है, बट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड हियर। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये सेव कर लो इमेज, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अदर और अदरवाइज सेव दिस इमेज। इसका सॉल्यूशन तुम लोग मुझे फाइंड आउट करके सेंड करो, या फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस। मैं किसी को भी पूछूंगी, यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी दिस आंसर, सॉल्यूशन ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन। सबको नोट करना है, किसी को भी पूछूंगी मुझे कैसे किया, देन यू हैव टू शेयर योर सॉल्यूशन विथ अदर्स, विथ ऑल। And so here we have ended with this magnetic effect of electric current topic. So next time onwards, I'm planning to start with the atoms, molecules, and nuclei. Is this fine with you, or do you want something else? थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से ब्रेक लेते एंड अलग टॉपिक एक डिस्कस करते हैं। इसलिए आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट टॉपिक। तुम लोग को कोई अलग टॉपिक चाहिए, देन यू कैन इन्फॉर्म, या फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर फाइन फॉर यू। वही वही ठीक है। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को ब्रेक देते हैं और वो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एटम्स की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, ठीक? जो अभी सॉल्व यस मैम। किए वैसे ही कुछ सॉल्व करना है। यू हैव टू जस्ट थिंक। यहाँ पे ऑप्शंस देखना जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन टू यू। सो एनीवे, सो डू यू हैव एनी डाउट इन टुडेस टॉपिक? आज वोल्ट मीटर पे जो भी देखा, क्वेश्चन सॉल्व किए, उस पे इसमें कुछ डाउट है?
थोड़े वो जो सम देखे थे अलग टाइप के आई जे अपॉन आई वाले वगैरह, वो याद रखने हैं कैसे सॉल्व किए हैं या फिर कैसे कॉन्सेप्ट यूज करनी है, एक्सप्रेशंस कौन से यूज करने हैं. नो क्वेरी. Then let's stop here for the day. See you in the next lecture. Pranita ma'am. Okay, Nikita. Any query you have? Mitesh. No queries, ma'am. Okay, so okay, Pranita ma'am, let's wind Yes, up here. Yes, ma'am. Thank you so much.